Hello everyone. So today we are going to first of all solve the two examples which are there in the exercise, right? Means example 12 and example 13. Then we will continue with our exercise, right? So example 12 is there in your textbook NCERT. Solution is given, but here they have not shown in very much detail. They have just written the answer. Okay, so we will discuss now example 12. Okay, so in example 12 we have find the interval in which f of x is equal to sin 3x. ठीक है, f of x is equal to sin 3x. We have to find the interval in which this function where x belongs to pi by 2, closed interval, where x belongs to closed interval pi by 2 is increasing. Means when we have to find the interval when this function is increasing, and we have to find the interval when this function is decreasing in the where x belongs to 0 to pi by 2. ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहले तो क्या करना है हमें, वी हैव टू फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स. ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स दैट इज sin 3x, डेरिवेटिव इज cos 3x and derivative of 3x is 3, so I have multiplied directly, that is 3 times cos 3x. ठीक है, now listen to me. We want to find the interval, so let f dash of x be 0. ठीक है, if this is 0 then 3 times cos 3x is equal to 0. ठीक है, 3 times cos 3x is equal to 0. अब मैं अगर 3 लिखूँ कि ना लिखूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, that doesn't matter. Now cos 3x is equal to 0. Cos 3x is equal to 0 means ऐसे कौन सी वैल्यू पे cos मीन्स 0 होता है. ठीक है, तो एक तो भाई cos पाई बाई 2 पे और cos 3 पाई बाई 2 पे. ठीक है, तो एक तो होता है पाई बाई 2 पे और एक होता है 3 पाई बाई 2. ठीक है, तो here 3x equal to पाई बाई 2, that is nothing but x equal to 5 by 6, and 3x equal to 3 pi by 2, that is nothing but 3 and 3 cancel, x equal to pi by 2. ठीक है, so this will be your intervals where pi by 6 and pi by 2, there we have got two critical points in short we can say. ठीक है, चलो तो यहाँ तक समझ में आया. स्टिल वन आंसर इज नॉट ओवर. ठीक है, चलो तो अब हमारा इंटरवल कौन सा है, 0 to pi by 2. सो वी कैन नॉट राइट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. सो लिसन टू मी, दिस पार्ट आई एम इरेजिंग. ठीक है, 1 2 3 4 लाइन्स. सो इफ यू राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक एंड दिस पार्ट आई एम इरेजिंग. Now listen, it is given that 0 till pi by 2. Here we cannot write minus infinity to infinity because interval is given, x is between these two. So pi by 6 and pi by 2. Pi by 2 is already there, so here we write pi by 6. Pi by 6. ठीक है, तो now we want to find where it is increasing and when it is decreasing. तो 0 से पाई बाई 6 की बात करें, बट पाई बाई 6 हम नहीं रख सकते. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 0 से लेके पाई बाई 6 लाइक दिस वे, एंड पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 2. अब ये इसमें क्लोज्ड इंटरवल 0 में और पाई बाई 2 में भी क्लोज्ड, इसमें ओपन आएगा. क्यों, बिकॉज पाई बाई 6 इज नॉट इंक्लूडेड. चलो तो 0 to पाई बाई 6, राइट. नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स
f dash of x is 3 times cos 3x. ठीक है, f dash of x is 3 times cos 3x. But now listen. ठीक है, here we are talking about this interval 0 to pi by 6. So x is between 0 to pi by 6. For 0 to pi by 6, x is between 0 to pi by 6, but we have 3x, so multiply by 3 on all the sides. 0 less than x less than 3 pi by 6. So 3 pi by 6, that is nothing but pi by 2 only. ठीक है, 3 pi by 6, that is nothing but pi by 2 only. So instead of this, I am writing over here, that is pi by 2. तो पाई 0 to pi by 2 मीन्स ये जो क्वाड्रेंट है that will come in the first quadrant. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो भाई साइन हो कि कॉस हो, जो भी फंक्शन हो, वैल्यू पॉजिटिव रहती है. ठीक है, तो हियर इट इज पॉजिटिव, दैट इज नथिंग बट एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0. व्हेन एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज इंक्रीजिंग. और ये फंक्शन में चेक करते हैं अब. ठीक है, दिस वॉज फॉर 0 to pi by 6. नाउ वी विल चेक फॉर दिस फंक्शन pi by 6 से लेके pi by 2 तक. तो pi by 6 less than x less than pi by 2. But here we have 3x, so multiply by 3 on all the sides. 3, here also 3, here also 3. ठीक है, 3 pi by 6 less than 3x less than 3 pi by 2. चलो, तो 3 pi by 6 is nothing but pi by 2. So here I am writing over here that is pi by 2. तो pi by 2 से लेके 3 pi by 2 मतलब विच क्वाड्रेंट. ठीक है, हम चेक करते हैं. pi by 2 से लेके 3 pi by 2 means which quadrant? Here pi by 2 is here. 1 time pi by 2, 2 times pi by 2, 3 times pi by 2. This part. In this part, okay, it is always negative. ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट हो कि थर्ड क्वाड्रेंट हो, दोनों में नेगेटिव है कॉस की वैल्यू. तो हियर इट इज लेस देन 0. तो यहाँ पे इट इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे इट इज लेस देन 0. तो यहाँ पे क्या होता है, इंक्रीजिंग. तो 0 to pi by 6 ये इंटरवल पे द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड हियर इन दिस इंटरवल द फंक्शन इज डिक्रीजिंग. फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट थोड़ा सा टिपिकल सम था, इट वाज नॉट दैट मच इजी. ठीक है, तो नाउ आई होप दैट यू अंडरस्टूड हाउ वी हैव सॉल्व्ड दिस आंसर, राइट. Same type of question is there, example 13, that also we are going to solve. ऐसे ही टाइप का है. ठीक है, we will solve it. So
example 13 is there, that is find the interval in which the function given by f of x is equal to sin x plus cos x. F of x is given, that is sin x plus cos x. 0 less than x less than 2 pi. So 0 less than equal to x less than equal to 2 pi. Is increasing or decreasing? We have to find the interval. ठीक है, तो चलो भाई सबसे पहले तो एक काम करते हैं. That you also know f of x is given sin x plus cos x, so you find f dash of x. So f dash of x, sin x derivative cos x, sin x derivative that is cos x, cos x derivative that is minus sin x. ठीक है, and the in it is in between 0 to 2 pi. चलो, तो वी हैव टू फाइंड द इंटरवल, सो लेट एफ डैश ऑफ एक्स बी 0. 0 इज इक्वल टू cos x minus sin x, that is nothing but minus sin x will come over here, so sin x is equal to cos x. So sin x cos x will come down, is equal to 1. So tan x is equal to 1. If tan x is 1, then x equal to 5 by 4. ये तो आती है एक वैल्यू x की. अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ठीक है, लिसन टू मी वेरी केयरफुल. ये तो एक पॉइंट आया पाई बाई 4, दूसरा पॉइंट कहाँ से मिलेगा? तो अब मेरी बात को समझो ध्यान से, ठीक है. पाई बाई 4 मतलब ये है, यहाँ पे tan की वैल्यू क्या है? 1 है. तो अगर मैं लाइन को एक्सटेंड करूँ, मतलब 180 ऐड करो, ठीक है, 45 डिग्री पे है और उसमें 180 ऐड करो तो कितना होगा? 225. यहाँ पे भी वैल्यू 1 ही है tan की, दोनों पे वैल्यू 1 है ना. सी tan पाई बाई 4 वैल्यू इज 1, बट इफ यू एक्सटेंड दिस लाइन हियर ऑल्सो द वैल्यू ऑफ tan इज 1 ओनली. सो पाई बाई 4 प्लस दिस इज टोटल 180. सो पाई बाई 4 प्लस 180, दैट इज नथिंग बट पाई बाई 4 इज 45 प्लस 180. 45 प्लस 180 इज 225. तो 225 मतलब कितना होता है? 5 पाई बाई 4. ठीक है, तो ये दोनों जगह पे tan की वैल्यू 1 होगी, कीप इन माइंड. सो x इज ऑल्सो इक्वल टू 5 पाई बाई 4. ठीक है, अब हमें 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाए. ठीक है, नाउ वी विल be forming the table and then we will be solving. चलो, तो now let us form the table over here. Pi by 4 and 5 pi by 4 and here 0 till 2 pi because they have given the interval. ठीक है, इसीलिए मैंने माइनस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी नहीं रखा हुआ है. they have given the interval 0 to 2 pi. तो अब यहाँ पे आएगा पाई बाई 4 और यहाँ पे आएगा पाई पाई बाई 4. चलो, तो अब हमें क्या करना है? ठीक है, तो 4 इंटरवल होंगे, 0 to पाई बाई 4, पाई बाई 4, 3 हो गए, सॉरी 3. पाई बाई 4 से लेके पाई पाई बाई 4 और पाई पाई बाई 4 से लेके 2 पाई. चलो, तो ये इंटरवल की बात करते हैं, 0 to पाई बाई 4. तो 0 to पाई बाई 4 मतलब कौन सा? देखो, सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन, साइन कॉस जो भी फंक्शन हो, ठीक है,
0 to पाई बाई 4 मतलब कौन सा आता है, ये कॉस। तो यहाँ पे तो हमारा फंक्शन साइन और कॉस ही है, दोनों में से कोई भी एक है, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा ना, तो पॉजिटिव रहेगा। अगर चेक करना है, ठीक है, चेक करना है तो देखो 0 to पाई बाई 4 मतलब सॉरी इतना रहेगा, इतना 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 रहेगा, इतना रहेगा, ठीक है। और ये पूरे एरिया में एफ डैश ऑफ एक्स, व्हाट इज अवर एफ डैश ऑफ एक्स, दैट इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। एफ डैश ऑफ एक्स इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो आप कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे कि पाई बाई 4 ले लो, चलो फॉर एग्जांपल पाई बाई 4 नहीं ले सकते तो हम एक काम करते हैं, इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो आप, ठीक है। यू टेक इट एनी वैल्यू, इट विल बी फॉर एग्जांपल टेक 30, ठीक है, टेक 30 फॉर एग्जांपल। तो cos 30 माइनस साइन 30, cos 30, व्हाट इज cos 30, √3/2 and sin 30 1/2, √3/2 minus 1/2, it will be always positive। तो इसलिए वे सिंपल सी चीज़ है, इतने में बस पॉजिटिव ही रहेगी, राइट। फॉर एग्जांपल यू टेक 30 डिग्री तो पॉजिटिव रहेगी। नाउ हियर सेकंड पॉइंट, पाई बाई 4 से लेके 5 पाई बाई 4, ठीक है, पाई बाई 4 से लेके 5 पाई बाई 4 मतलब कि कौन सा रहेगा, पाई बाई 4, ठीक है। तो ये है पाई बाई 5 पाई बाई 4, पाई पाई बाई 4, ठीक है, इतना है। अब ओवर हियर इन बिटवीन दिस टू व्हाट इज दैट, value of cos x minus sin x। for example you take 90 degree, तो cos 90 is 0 and sin 90 is 1, minus 1 आया। और वैसे ही 2 पाई, पाई बाई 4 से लेके 2 पाई, तो पाई बाई 4 ये है और ये 2 पाई है, इतना, इतने में कैसे कौन सी वैल्यू आएगी, पॉजिटिव की नेगेटिव। फॉर एग्जांपल टेक 270, cos 270 0, sin 270 -1, तो 0 माइनस ऑफ -1, तो इट विल बी पॉजिटिव। तो आपको ये एज्यूम करना है कोई भी वैल्यू जो आपको साइन पता हो उसकी, ठीक है, तो वो लेना है और उसमें से आपको फिर बाद में सॉल्व करना है, ठीक है। सो यू विल बी गेटिंग द आंसर्स। सो here this I hope that now you understood how you have done this। तो पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग हुआ, राइट, पॉजिटिव है तो ये इंक्रीजिंग हुआ, नेगेटिव है तो ये डिक्रीजिंग हुआ, ये पॉजिटिव है तो ठीक है। So now let us proceed with the next question। आंसर नंबर 12, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाई 2, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाई 2, तो 0 to पाई बाई 2 पे यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिए हैं बट यू कंसिडर, राइट। तो चलो f of x is cos x, so first of all you find f dash of x, तो f dash of x माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स। अब देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मीन्स f dash of x must be less than 0, not equal to, okay, not less than equal to, it must be less than 0 only for strictly decreasing।
for strictly decreasing it must be f dash of x must be less than 0. तो 0 to पाई बाई 2 में चेक करो साइन कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है, ये तो नेगेटिव नहीं है, लेकिन साइन की वैल्यू ही नेगेटिव है, तो पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ये फंक्शन हुआ ना लेस देन 0. देयरफॉर यस. अब अगर उन्होंने ऐसा दिया होता एफ ऑफ एक्स इज माइनस कॉस एक्स, तो एफ डैश ऑफ एक्स वॉज प्लस साइन एक्स, बिकॉज माइनस माइनस विल बी प्लस. ठीक है, तो ये आंसर नो आता, बिकॉज साइन एक्स इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to पाई बाई 2, तो ये आंसर नो आता. लेकिन ये माइनस साइन एक्स है, तो माइनस साइन एक्स तो भाई वो तो नेगेटिव रहेगा. ठीक है, तो इसी तरह पे है cos 2x. तो अगर आपको cos 2x कर दिए यहाँ पे, हियर इफ इन सेकंड वन इफ f of x is cos 2x then minus of 2 times sin 2x, then for strictly decreasing it must be less than 0. So listen to me. Here x is belonging to okay, x is belonging to 0 to pi by 2 means 0 less than x less than pi by 2. But listen here, it is 2x. F dash of x में 2x है, so multiply by 2 on both the sides. 0 to pi. अब 0 to pi means ठीक है 0 to pi. तो इसमें हियर ठीक है वैल्यू ऑफ साइन, ये साइन मतलब ये वाई एक्सिस पॉजिटिव ही रहेगी ना, आप यहाँ पे ले लो, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे पॉजिटिव ही रहेगी. देयरफॉर f dash of x पॉजिटिव रहेगी, बट ये माइनस की साइन है. ठीक है, तो इट विल बी नेगेटिव. f dash of x is less than 0, so it is yes. क्लियर? क्यों ऐसा है? अगर माइनस साइन नहीं होती तो नो आता, बिकॉज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. दिस साइन वैल्यू ऑफ साइन टू एक्स इन दिस फर्स्ट टू क्वाड्रेंट्स इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट माइनस इज देयर, सो इट इज लेस देन 0. ठीक है, यू टेक देयर ऑफ इंटरवल 0 to pi by 2 is given, but here 2x is there, so 2 into 0 0, 2 into x 2x and 2 into pi by 2 pi. तो इस मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या रहती है? पॉजिटिव. बट क्वेश्चन में मतलब एफ डैश ऑफ एक्स में माइनस है, तो माइनस होगा, तो पॉजिटिव का अगर नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0, देयरफॉर यस इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो ऐसे ही cos 3x है. ठीक है, लेकिन cos 3x में क्या होगा? cos 3x में क्या होगा? cos here it is 3x, so it is minus 3 into sin 3x. तो यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मतलब यहाँ तक. तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो मिक्स हो गया, तो इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. ठीक है, इट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. देयरफॉर the answer is means you write no, it is not strictly decreasing. ठीक है, and last one that is fourth one, that is tan x. तो by tan x तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा? sec square x, and f dash of x is greater than 0. why? because 0 to pi by 2 it is not 0, so it is not strictly decreasing. ठीक है, fourth term in fourth one it is given f of x is equal to tan x. So f dash of x is equal to sec square x. तो अब देखना इसमें माइनस की साइन नहीं है. ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स में माइनस की साइन नहीं है, और हमारा इंटरवल तो 0 to pi by 2 है, तो इट इज
f dash of x, here it is greater than 0. Here f dash of x is greater than 0. Therefore the answer is no. No means not strictly decreasing. ठीक है, चलो, तो I hope that this much you all understood, right? If you have any confusion, then you can ask me, right? Thank you very much. Have a great day.